جنگ کا نیا دور شروع ہوا تو پاکستان پیچھے نہیں رہے گا. اس بار بھارتی جغرافیائی حدود کو چکنا چور کر دیں گے. پاک فوج نے بھارت کو خبردار کر دیا. بھارتی فوجی قیادت کے اشتعال انگیز بیانات پر پاک فوج کا اظہار تشویش. ISPR کے مطابق پاکستان پوری قوت اور پختہ عزم کے ساتھ کسی قسم کی ہچکچاہٹ یا پابندی کے بغیر جواب دے گا. بھارت شاید پاکستان کے دور تک مار کرنے والے ہتھیاروں کی تباہ کاریوں کو بھول گیا ہے. بھارت اپنے لڑاکا طیاروں کے ملبے کو بھی بھول گیا ہے. بھارت ایک نئے تصادم کی خواہش میں مبتلا دکھائی دیتا ہے. ISPR کے مطابق بھارتی دفاعی وزیر اور فوج و فضائیہ کے سربراہان کے انتہائی اشتعال انگیز بیانات سامنے آئے ہیں. ایسے بیانات جنوبی ایشیا میں امن و استحکام کے لیے سنگین نتائج کا باعث بن سکتے ہیں. یہ غیر ذمہ دارانہ بیانات اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ بھارت ایک بار پھر جارحیت کے لیے من گھڑت بہانے تراشنے کی کوشش کر رہا ہے. ISPR کے مطابق گزشتہ کئی دہائیوں سے بھارت نے خود کو مظلوم اور پاکستان کو منفی انداز میں پیش کرنے کا فائدہ اٹھایا. در حقیقت بھارت جنوبی ایشیا اور اس سے آگے تک تشدد کو ہوا دینے اور دہشت گردی کو فروغ دینے میں ملوث رہا ہے. I'd like to congratulate Pakistan Armed Forces and also the forces from the friendly countries on the historic victory of Banyan al-Marsus. Pakistan is a proud country today because of that. And I would like to commend and laud the exceptional leadership of Field Marshal Qasim Munir in the wartime. Pakistan is really proud of all of you. My role as the Chief Minister, Chief Executive of the most populous province of Pakistan. پاکستان کو اندرونی اور بیرونی چیلنجز درپیش. فیلڈ مارشل کی حکمت عملی سے جنگ میں کامیابی ملی. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے لاہور میں قومی سلامتی اور جنگی کورس کے شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کورس میں شریک غیر ملکی شرکاء اپنے ممالک کے سفیر ہیں. مشترکہ تربیتی کورس سے باہمی تعلقات مضبوط ہوں گے. پاکستان نے آپریشن بنیان المرصوص میں تاریخی کامیابی حاصل کی. پاکستان کی مسلح افواج کی پیشہ ورانہ مہارت پر فخر ہے. درپیش چیلنجز سے مل کر نمٹا جا سکتا ہے. فتنال ہندوستان کے شرپسند مسلسل ناکامیوں پر بوکھلاہٹ کا شکار. خزدار کے علاقے زہری میں پرامن لوگوں کو ہراساں کرنے کی کوشش. سیکیورٹی فورسز کا بروقت آپریشن. 14 سے زائد دہشت گرد ہلاک، 20 سے زائد زخمی. ISPR کے مطابق سیکیورٹی فورسز نے متعدد ٹھکانوں کو کامیابی کے ساتھ تباہ کیا. سیکیورٹی فورسز عوام کے تحفظ کے لیے فتنال ہندوستان کے دہشت گردوں کے خاتمے کے لیے ہمہ وقت تیار ہیں. آزاد کشمیر حکومت، عوامی ایکشن کمیٹی اور وفاقی حکومت کے درمیان مذاکرات کامیاب. 12 بنیادی اور 13 اضافی نکات پر مشتمل جامع معاہدہ طے پا گیا. وفاقی وزیر امور کشمیر کی سربراہی میں اعلیٰ سطح مانیٹرنگ کمیٹی تشکیل. مظفر آباد اور پونچھ میں نئے تعلیمی بورڈز کے قیام سے تعلیمی اصلاحات کی جائیں گی. منگلا ڈیم توسیع منصوبے کے متاثرہ خاندانوں کو زمین کی فراہمی یقینی بنانے کا وعدہ. صحت اور بجلی کے نظام کی بہتری کے لیے اربوں روپے کی فنڈنگ منظور. گرفتار مظاہرین کی رہائی اور انسداد دہشت گردی ایکٹ کے تحت مقدمات کا شفاف اور منصفانہ حل معاہدے میں شامل. مذاکرات کی کامیابی کے بعد آزاد کشمیر میں زندگی معمول پر آنے لگی. موبائل سروسز بحال، بازار بھی کھل گئے. مظفر آباد، باغ، آزاد کشمیر اور دیگر علاقوں میں موبائل فون سروس بحال. کاروباری مراکز کھل گئے. ٹریفک معمول کے مطابق رواں دواں. بھارت کی کشمیر میں خونریزی کی خواہش کبھی پوری نہیں ہوگی. اسلام آباد میں مشترکہ نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے مذاکراتی کمیٹی کے رکن امیر مقام نے کہا مذاکرات کی کامیابی سے بھارت کے مذموم عزائم خاک میں مل گئے. وفاقی وزیر احسن اقبال نے کہا مذاکرات میں پاکستان اور آزاد کشمیر کے مفاد کو مد نظر رکھا گیا ہے. انتظامی ڈھانچے میں کمی کوتاہی کو دور کیا جانا چاہیے. قمر زمان قائرہ نے کہا کہ پرتشدد مظاہروں میں خون بہنے پر افسوس ہے. کمیٹی ہر 15 روز بعد اجلاس کرے گی. وزیراعظم شہباز شریف کا آزاد کشمیر مذاکراتی عمل کی کامیابی کا خیر مقدم. کہا حکومت اپنے کشمیری بھائیوں کے مسائل کو حل کرنے کے لیے ہر وقت تیار. لندن میں فلسطین کے حق میں بڑی ریلی. غزہ میں جاری نسل کشی کے خلاف احتجاج. برطانوی حکومت کی فلسطین ایکشن پر پابندی. ریلی کے دوران پولیس نے دھاوا بول دیا. لندن پولیس نے فلسطین کے حق میں احتجاج کرنے والے متعدد مظاہرین کو گرفتار کر لیا. مظاہرین کا غزہ میں قتل عام روکنے اور فلسطین ایکشن پر پابندی اٹھانے کا مطالبہ. دنیا میں اسرائیلی بربریت کے خلاف عوام پھٹ پڑے. اسپین بارسلونا میں فلسطین میں نسل کشی کے خلاف احتجاج میں ٹیکسی ڈرائیورز کی شرکت. مالاگا میں بھی غزہ سے اظہار یکجہتی اور گلوبل سمو فلوٹیلا پر اسرائیلی حملے کے خلاف مظاہرے. فرانسیسی مظاہرین نے اسرائیلی فوج کے لیے بھیجے جانے والے الیکٹرانک
उर्जों की तरसील रोक दी। पेरिस में एक और एहतजाज में मारूफ फुटबॉलर किंग्सले कोमैन और उनकी अहलिया की शिरकत। हमास के अमरीकी अमन मंसूबे पर जवाब जमा करवाने के बाद इसराइल की जानिब से ट्रंप मंसूबे के पहले मरहले पर फौरी अमल दरामद शुरू। वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस के मुताबिक इस मरहले में कैदियों की रिहाई और बाज़ फौजी तब्दीलियां शामिल। इसराइली फौज ने भी इतलाक की तैयारियों की तस्दीक कर दी, जबकि मुज़ाकराती वफ़्द की तैयारी भी जारी है। अलबत्ता मुज़ाकरात का मुकाम तय नहीं हुआ। इसराइली फौजी जुज़वी इनखला की तैयारी भी कर रहे हैं, जो कि पहले मरहले का हिस्सा है। शिमाली गजा को खतरनाक करार देकर रिहायशियों की वापसी पर पाबंदी बरकरार है। गजा में अमन के लिए आलमी सतह पर कोशिशों में पेशरफ्त। हमास ने डोनाल्ड ट्रंप का 20 निकाती अमन मंसूबा मशरूत तौर पर कबूल कर लिया। फलस्तीनी मज़ाहमती तंजीम का बाज़ाब्ता जवाब जंग बंदी और इसराइली अफवाज के मुकम्मल अनखला के बदले तमाम यरगमालियों की रिहाई के लिए रजामंद। सालिसों के जरिए मुज़ाकरात में शमूलियत पर भी राजी। अमन मंसूबा कबूल करने पर अमरीकी सदर का हमास से इज़हार तशक्कुर। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं, जिन ममालिक ने मदद की उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। सब जंग के खात्मे के लिए मुत्तहिद हैं। अब इसराइल फौरी तौर पर बमबारी रोक दे ताकि यरगमालियों को फौरी और महफूज तरीके से निकाला जा सके। इसराइल ने अमेरिकन सदर ट्रंप का मुतालबा मुस्तरद कर दिया। गजा पर सुबह से जारी हमलों में मजीद 20 फलस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी। सह्यूनी फौज का गजा सिटी में ऑपरेशन जारी रखने का ऐलान। लोगों को वापस आने से मुताल्लिक सख्त इंतबाह। फ्लोटेला से गिरफ्तार रजाकारों की रिहाई शुरू। तुर्किया के 36 अफराद समेत 137 रजाकार रिहा। स्पेशल फ्लाइट से इस्तंबुल पहुंच गए। एयरपोर्ट पर शानदार इस्तकबाल। फलस्तीन में जंगबंदी के करीब हैं। पाकिस्तान हमेशा फलस्तीनी अवाम के साथ खड़ा रहा और खड़ा रहेगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, हमास के बयान ने जंगबंदी और अमन कायम करने के लिए मौका फराहम किया। हमें उसे दोबारा ज़ाया नहीं होने देना चाहिए। दफ्तर खारजा का कहना है कि हमास के रद्द-ए-अमल का खैर मकदम करते हैं। इसराइल फौरी तौर पर गजा में हमले बंद करे। हमास का ये इक़दाम फौरी जंगबंदी को यकीनी बनाएगा। फलस्तीनी कैदियों की रिहाई इंसानी इमदाद में भी मददगार होगा। हुकूमत का बानी पीटीआई का एक्स अकाउंट बंद करने से मुतालिक अहम ऐलान। एक्स से राब्ते वज़ीर ममलिकत बैरिस्टर अकील मलिक ने अपने एक बयान में बताया कि बानी पीटीआई के एक्स अकाउंट से मुतालिक तहकीकात जारी हैं। एक्स से भी राब्ते में है। मजीद शवाहिद सामने आने पर नताइज जल्द सामने आ जाएंगे। बानी के एक्स अकाउंट के ताने बाने जहाँ से मिलते हैं या जो इसे चला रहा है, इस वक्त सिर्फ इतना बता सकता हूँ, इस हवाले से कानूनी तरीक़ेकार पर अमल दरामद किया जा रहा है। उमर अयूब और शिबली फराज को डी सीट करने का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर ने उमर अयूब और शिबली फराज को डी सीट करने से मुतालिक पेशावर हाई कोर्ट का फैसला बतौर वकील सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। पेशावर हाई कोर्ट ने शिबली फराज और उमर अयूब को डी सीट करने के फैसले पर हुक्म इम्तना दिया था। 1 अक्टूबर को पेशावर हाई कोर्ट ने हुक्म में इम्तना खत्म करते हुए समाअत मुलतवी कर दी थी। पेशावर हाई कोर्ट ने उमर अयूब को मिजाज फोरम के सामने सरेंडर करने की भी हिदायत की थी। इलेक्शन कमीशन ने शिबली फराज और उमर अयूब को सजाएं होने के बाद डी सीट करने का नोटिफिकेशन जारी किया था। खैबर पख्तूनख्वा काबीना का 9 मई तोड़ फोड़ और फायरिंग केस वापस लेने का फैसला। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने पब्लिक प्रोसिक्यूटर का तबादला कर दिया। एडिशनल एडवोकेट जनरल इनामुल्लाह 9 मई केस के लिए स्पेशल प्रोसिक्यूटर मुकर्रर कर दिए गए। एडिशनल एडवोकेट जनरल ने केस वापस लेने का एडिशनल होम सेक्रेटरी का खत जमा करवा दिया। 9 मई को पत्थर और फायरिंग के वाकयात में कारकुन, राहगीर और पुलिस एहलकार जख्मी हुए थे। मुल्जिमान में ताहिर शाह तोरो, MNA मुजाहिद खान और दीगर शामिल। वज़ीर-ए-आज़म की जाती उम्रा में सदर नून लीग नवाज शरीफ से मुलाकात। शहबाज शरीफ ने अपने हालिया बैरून मुल्क दौरों के हवाले से आगाह किया। वज़ीर-ए-आज़म की नवाज शरीफ को आज़ाद कश्मीर की हालिया सूरत हाल और कामयाब मुज़ाकरात पर भी तफसीली ब्रीफिंग। वज़ीर-ए-आज़म कल अपने मलाइशियन हममंसब अनवर इब्राहिम की दावत पर मलाइशिया के 2 रोज़ा दौरे पर रवाना होंगे। जेर हिरासत मुल्जिमान के इंटरव्यूज करने, एतराफी बयान जारी करने पर पाबंदी आयद। लाहौर हाई कोर्ट के मुताबिक जेर हिरासत मुल्जिम का इंटरव्यू फेयर ट्रायल को मुतासिर कर देता है। जबरदस्ती और तशहीर शुदा एतराफ जुर्म इंसाफ नहीं बल्कि जुल्म है। जस्टिस अली जिया बाजवा ने विशाल शाकर की जेर हिरासत मुल्जिमान के इंटरव्यू करने के खिलाफ दायर दरखास्तों पर तहरीरी फैसला जारी कर दिया और जेर हिरासत मुल्जिमान के इंटरव्यूज करने और मुल्जिमान के एतराफी बयान जारी करने पर पाबंदी आयद कर दी।
वफाकी और सूबाई हुकूमतों की सैलाब से होने वाले नुकसानात के बायस IMF से बजट सरप्लस हदफ पर नजरसानी की दरख्वास्त। वजारत खजाना के मुताबिक दूसरे इक़्तिसादी जायजे के लिए पाकिस्तान आए हुए IMF जायजा मिशन और पाकिस्तान के दरमियान तकनीकी सतह के मुज़ाकरात जारी हैं, जिसकी तकमील के बाद पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात होंगे। वफाकी और सूबाई हुकूमतों के नुमाइंदगान की IMF जायजा मिशन से अहम मुलाकात हुई है, जिसमें खदशा जाहिर किया गया है कि सैलाब के बायस 1464 अरब का सूबाई बजट सरप्लस हदफ हासिल न होने का इम्कान है। पंजाब के मामलात में मुदाखलत, पीपल्स पार्टी आईनी इख्तियारात से तजावुज़ कर रही है। वज़ीर इत्तलात पंजाब उस्मा बुखारी ने अपने बयान में कहा कि जो हर बात पर मुरसू करते हैं वो सूबाइयत का कार्ड खेल रहे हैं। आप या तो अपने हवास खो बैठे हैं या मरियम नवाज की मकबूलियत से खौफजदा हैं। 2 हफ्ते पहले मीडिया पर आपको कोई घास नहीं डालता था, आज आप पंजाब के सैलाब मुतासरीन और किसानों पर फिक्रेबाजी करके खबरों में जगह बना रहे हैं। पंजाब में रहते हुए सिंध के वडेरों की गुलामी कब तक करते रहेंगे? जिस सूबे में पीपल्स पार्टी की 17 साल से हुकूमत है वहां मसाइल के अंबार लगे हैं। सिंध हुकूमत का ट्रैफिक कानून की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त इक़दामात का ऐलान। नए जुर्माने और डीमेरिट पॉइंट सिस्टम मुतारिफ। बगैर ड्राइविंग लाइसेंस मोटरसाइकिल चलाने पर 20,000, दीगर गाड़ियों पर 50,000 रुपए तक जुर्माना। बगैर हेलमेट मोटरसाइकिल चलाने पर 5,000 का जुर्माना होगा। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन कहते हैं शहरियों की जिंदगियां महफूज बनाना जरूरी है। ट्रैफिक कवानीन खिलाफ वर्जी पर भारी जुर्माना, डी मेरिट पॉइंट्स के नए निज़ाम पर MKM की शदीद तनकीद। मुत्तहदा कौमी मूवमेंट अरकान असम्बली ने इसे अहले कराची के साथ खुली ज्यादती और हुकूमत की नाअहली और करप्शन का शाखसाना करार दे दिया। अरकान असम्बली ने अपने मुश्तरका बयान में कहा कि कराची बरसों से पीपल्स पार्टी की मुतासिब पॉलिसी, नाअहली और करप्शन की वजह से बदतरीन मुश्किलात का शिकार है। सड़कें गढ़ों से भरी हुई हैं, ट्रैफिक सिग्नल्स गैर फाल हैं। ऐसे हालात में शहरियों पर भारी जुर्माने आयद करना न सिर्फ गैर मुनसिफाना है बल्कि सिंध हुकूमत की नाकामियों पर पर्दा डालने की कोशिश है। शिकारपुर में अलमनाक सानहा तेज रफ्तारी मौत का सबब बन गई। बाईपास रोड पर मजदा बिजली के पोल से टकरा गई। 5 खवातीन समेत 7 अफराद जाँ बहक, 7 शदीद जख्मी। हादसे के बाद 11,000 वोल्टेज की तारें सड़क पर गिर गईं। मरने वालों का ताल्लुक एक ही खानदान से था। DG ISPR का कैनेट कॉलेज फॉर विमेन यूनिवर्सिटी का दौरा, फैकल्टी मेंबरान और तालिबात से इस्तकबाल किया। इंटरेक्टिव सेशन में पाक फौज के पेशा वाराना उमूर पर तालिबात से तफसीली गुफ्तगू। DG ISPR ने पाक फौज, ताल्लुकात आम्मा, सिक्योरिटी मसाइल और सोशल मीडिया के किरदार पर रोशनी डाली। फैकल्टी और तालिबात की जानिब से DG ISPR की आमद को खुशाइंद करार दिया गया। दरिया सतलुज में भारत की जानिब से मजीद पानी आने का इम्कान। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशें मुतवक्की। DGPDMA का लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू के दौरान कहना था कि सैलाब से होने वाले नुकसान का इजाला किया जा रहा है। मुतासरीन अपने घरों को वापस जा रहे हैं। दरियाओं की सूरत हाल नॉर्मल है। और बहिरा अरब में डिप्रेशन शिद्दत इख्तियार करके तूफान में तब्दील। तूफान शक्ति कराची से तकरीबन 430 किलोमीटर जनूब में मौजूद महकमा मौसमियात के ट्रॉपिकल साइक्लोन वार्निंग सिस्टम की जानिब से छठा अलर्ट जारी। कराची में आज कहीं बारिश का इम्कान। माहीगीरों को 5 अक्टूबर तक गहरे समंदर में ना जाने की हिदायत।